So before we start, let me just share something. इससे पहले कि हम शुरू करें मुझे कुछ बताने दीजिए। Once there was a conference, it was a couple conference. एक कपल कॉन्फ्रेंस थी। So the lady who was taking the seminar was just getting to know the crowd. और जो सेमिनार ले रही थी वो सिर्फ क्राउड को जानने की कोशिश कर रही थी। So she was like, okay, talk something about how long you've been married and what are the success stories of your life. और वो पूछ रही थी आप कितने साल से आपकी शादी हुई है, आपकी सक्सेस स्टोरीज क्या हैं। So one of the man, like the oldest one, he was like, I've been married almost 50 years. और वहाँ पर एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि मैं पिछले 50 साल से मेरी शादी हुई हुई है। So he was the oldest in the crowd. और वो उस पूरे क्राउड में सबसे बूढ़े थे। And everybody were amused. Oh wow, 50 years married with the same person. Share us your testimony. और सबने बोला कि 50 साल आपकी शादी को हो गए एक ही व्यक्ति से, प्लीज अपनी गवाही हमें बताइए। So like, what are the things you did to make it successful? और आपने ऐसा क्या किया जो आपकी शादी इतनी सक्सेसफुल हो पाई। So he was like, I always loved my wife, spoke good words, gave her gifts. और उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बारे में अच्छी बातें बोलता हूँ, उसको गिफ्ट देता हूँ। Yeah, and so he was like, okay, what did you do for your 25th anniversary? और उन्होंने पूछा भी आपने अपनी 25वीं एनिवर्सरी पे क्या किया था। Well, I took her on a cruise to Bahamas. और मैं उसको बहामास के एक क्रूज पे लेकर गया। So she was like, okay, now you're going to celebrate your 50th anniversary. What's your plan for your 50th anniversary? और अब आपकी 50वीं एनिवर्सरी आने वाली है, उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं। So he was like, I'm planning to go back to Bahamas and bring her back. मेरा प्लान है कि मैं वापस बहामास पे जाऊँ और उसको वापस लेकर आऊँ। So Joshua and I were planning an Alaskan cruise this trip. और I put it on hold. और इस साल मैं और जोशुआ अलास्का ट्रिप पे जाने की सोच रहे थे और हमने उसको होल्ड पे डाल दिया। Yeah, cancel हो गया trip. वो ट्रिप ही कैंसिल हो गया। Everybody has their own journey in the marriage. मेरा विश्वास है कि हम सबकी एक जर्नी है अपनी अपनी शादियों में। And as last time Joshua was talking about from the husband's perspective, लास्ट वीक जब पास्टर जोशुआ हस्बैंड के साइड से बात कर रहे थे, today I'm going to talk from a wife's perspective. और आज मैं आपको पत्नियों के दृष्टिकोण से समझाना चाहूँगी। This is a series, ये एक सीरीज है so we'll continue on this. और इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। Like he was talking how important it is for a husband to speak good things over a life. हमने सीखा कि कितना ज़रूरी है एक पति के लिए अच्छी बातें बोलना। The words are like seeds for a woman. और जो वो शब्द हैं वो औरत के लिए बीज का काम करते हैं। Whatever words the husband speaks over her germinates in her. जो कुछ भी शब्द पति बोलते हैं वो पत्नी के अंदर जन्म लेते हैं। I always think about it this way, like God told Adam, name everything, and he was looking like what Adam calls will be the name of that. उत्पत्ति पहले अध्याय में जब परमेश्वर ने आदम को कहा कि तुम सबके नाम रखो, और जब वो सबके नाम रख रहा था, It's always interpreted that a man should have a job before starting a family or having a wife. इसका मतलब कि आदमी के पास एक जॉब है इससे पहले कि वो परिवार को शुरू करे, एक फैमिली को शुरू करे। But at the same time, I also think पर एक और बात जो मैं उस समय सोचती हूँ, probably God was also teaching Adam to use his words right. और परमेश्वर शायद आदम को ये सिखा रहे थे कि अपने शब्दों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। Because whatever he was speaking over things, that was the name of them. क्योंकि जो कुछ भी आदम उस दिन कह रहे थे वो लोगों के नाम पढ़ते जा रहे थे। And it is till date known by that, and it produces what it is called. और आज भी हम उनको उन्हीं नामों से जानते हैं और वो वही पैदा करते हैं जैसा उनका नाम है। In the similar way, I assume उसी तरह से मैंने ये सोचा, God was teaching Adam that when you have a wife, use your words right. और मैंने ऐसा सोचा कि परमेश्वर आदम को सिखाना चाह रहे थे कि जब तुम अपने शब्दों का इस्तेमाल करो उनको तरीके से इस्तेमाल करो। Whatever you speak, she will reap. जो कुछ भी आप बोलेंगे वो उसको पैदा करेगी। Sometimes in arguments, it is very easy, like maybe husband or even wife can call each other बेवकूफ, गधा, stupid. और जब हमारी कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो बहुत आम बात है कि पति पत्नी को या पत्नी पति को बेवकूफ़, गधा ऐसे बोल देती हैं। Then that's what you will germinate. और यही फिर आप उनमें पैदा होता है। So be wise on how you speak. तो बहुत समझदारी से अपने शब्दों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। Proverbs 24 says, a wife of a noble character is a husband's crown. भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वे मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। So a noble character is not something which is one-time event.
जो भला होना है, जो आपके कैरेक्टर में सही होना है, वो एक बारी का इवेंट नहीं है. There are some things as a wife, it's in you. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पत्नी के नाते आपके अंदर हैं. Some things you learn watching your mom. कुछ चीज़ें आप सीखते हैं अपनी माता को देखते हुए. Some things you learn by experience. कुछ चीज़ें आप सीखते हैं एक्सपीरियंस से. But the point is, continue, keep learning, because not everything happens in a day. It's a process. पर बात यह है कि आपको लगातार उसको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी एक दिन में नहीं हो जाता है. The important thing is you analyze yourself and see where you stand. आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये समझना है कि आप कहाँ पर हैं, And learn where you lack. और सीखिए जहाँ आप चूकते हैं, जहाँ आप में कमी पाई जाती है, उस एरिया में आपको सीखने की ज़रूरत है. Yeah, now you know why Joshua gave me this topic. अब समझ में आया आपको कि मुझे जोशुआ ने ये टॉपिक क्यों दिया है. In the book of Ruth, रूथ की किताब में अगर हम देखें, chapter 3, verse 10 to 11, 3रा अध्याय उसका 10वां और 11वां पद, Boaz talks about Ruth as a noble woman. जो बोआज है वो रूथ के बारे में बात कर रहे हैं और वो उसको भली स्त्री कहकर संबोधित करते हैं. And he said, Blessed be thou of the Lord, my daughter, for thou hast showed me more kindness in the latter end than in the beginning, inasmuch as thou followed not young men, whether poor or rich. उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी. There are two characters Boaz highlights about Ruth in this. इस वर्ष में रूथ के बारे में दो बातें हमें सीखने को मिलती हैं. First of all, her kindness. पहली बात उसकी काइंडनेस, वो कितनी दयालु है. Kindness is something which you do, that a favor you do on others without expecting something in return. दयालु होना होता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए बदले में. Treating people with gentleness, kindness, being good to others. लोगों के लिए कुछ भी करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना बिना कुछ एक्सपेक्ट किए. Second thing, chasing other men. दूसरा है जवान लोगों को का पीछा करना, लिखा है यहाँ पर. Nowadays, I think the term modernization has become very vast. ये जो मॉडर्न वर्ड हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही बदल गया है, बहुत उसका मीनिंग बहुत बड़ा हो गया है. Yeah, I mean, everything I think they just cap into modernization. Oh, the clothes you wear. Oh, this is modern. Oh, who cares? Flirting with other men. Oh, we are open. We are very open-minded. सो हर वो बात जो गलत है हम उसको मॉडर्न का टैग दे देते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हों, चाहे लोगों के साथ हमारा व्यवहार हो, चाहे एक्स्ट्रा अफेयर्स हो. Not necessarily always chasing other men is like chasing, but sometimes, dress modestly. Sometimes ask yourself why you dress the way you dress. सिर्फ इसका मतलब यही नहीं कि किसी व्यक्ति का पीछा करना, कुछ गलत रिश्तों में जाना, बट इसका मतलब ये भी है कई बार हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का हमारा हाव भाव होता है, क्या वो ज़रूरी है. Sometimes, I mean, the way at times women dress. I mean, if you are culturally, if it is fine, go ahead. I'm not against, but there's a narrow line between indecency and carrying yourself gracefully, I would say. कल्चर में अगर वैसा है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, पर यदि अगर आप देखें अपने कपड़ों को तो डिसेंट होने में और थोड़ा सा इनडिसेंट होने में एक छोटा सा ही फ़र्क है. एक बहुत पतली लाइन है जो हमको समझने की ज़रूरत है. Yeah, Bible says a noble woman is as ruby and rare, and she's found rare. लिखा है जो भली स्त्री है वो रूबी के समान है, उसको पाना कठिन है. If you do that everybody is doing, then ask yourself, are you a ruby? Because rubies are not found everywhere. It is rare. और अगर आप वही सब कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि जो रूबी की बात बाइबल में लिखी है वो बहुत रेयर होती है, वो हर किसी के पास नहीं पाई जाती. Titus chapter 2 verse 5. तीतुस उसका 2रा अध्याय उसका 5वां पद. It says, be self-controlled and pure, to be busy at home and to be subject to their husband, so that no one will malign the word of God. लिखा है और संयमी और पतिव्रता और घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए. So let's dig into what are the characters it's talking about. If you see all those characters, like what Proverbs 31 talks, is somewhere compartmentalized in this verse. हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, और ये वर्स जो नीति वचन 31 है उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है. Let's talk about more self-control. बात करेंगे संयम होने के बारे में. Women love to control. औरतों को पसंद है कंट्रोल करना. Only thing they don't control themselves, but everything around them. अपने आप को छोड़ के बाकी सबको कंट्रोल करना उन्हें But अच्छा Bible लगता है. doesn't talk about controlling things around you. It talks about self-control.
पर बाइबल इस बारे में बात नहीं करती कि आप बाहर क्या कंट्रोल करते हैं। बाइबल बात करती है संयम के बारे में, अपने पे कंट्रोल के बारे में। Let's talk about some of the habits women tend to ignore. कुछ ऐसी आदतें जो अमूमन औरतें इग्नोर कर देती हैं। First, words. पहली बात, शब्द। Women love to talk. औरतों को बात करना बहुत अच्छा लगता है। It is a standard saying that if men talk 1,000 words, women talk 10,000 words a day. अगर पुरुष 1000 शब्द बोलते हैं तो स्त्रियां 10,000 शब्द बोलती हैं एक And दिन if में। they are angry, it can be 50,000. और जब वो गुस्से में हो तो वो 10 से 50,000 हो जाते हैं। So take a control, analyze like when you are in anger, what are the words you use? अपने शब्दों को देखिए, जांचिए, परखिए कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप क्या बोलते हैं। Especially women in anger. No, I mean, I think this will go on both because I have to talk only for wife. I will stick to wife, but actually it implies on both. हाँ, ये बात पुरुषों पे और महिलाओं दोनों पर लागू होती है, पर क्योंकि मैं सिर्फ स्त्रियों के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं वहीं स्टिक रहूंगी। हाँ, तो husband ऐसे बीवी को टोचो मत. It will apply on both of you. तो जो हस्बैंड बैठे हैं वो अपनी बीवी को ऐसे करके सुन ले, नहीं बताओ, वो उन पे भी अप्लाई करती है। It is said anger is a real introduction to a person's heart. जो आपका गुस्सा है वो आपके हृदय को पूरी तरह से दिखाता है सामने। Because that's the time when you don't wrap it in a sweet chocolate wrap. क्योंकि वो समय होता है जब आप अपने आप को किसी एक स्वीट से रैपर में रैप करके नहीं प्रेजेंट करते हैं। Yeah, in anger, in anger, note down your tone, note down your language, like the kind of words you use, note down your volume. जब आप गुस्से में होते हैं तो अपने शब्द, अपना टोन, अपना वॉल्यूम, इन सब पे ध्यान दीजिए। Listen to your own words to analyze where you stand. और अपने शब्दों को दोबारा खुद सुनिए, देखने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। Sometimes, as wife, we may directly not do things to hurt your husband, but we do some things that trigger them. हम डायरेक्टली अपने पतियों को हर्ट करने के लिए कुछ नहीं करते, पर हमें पता है कि उनको गुस्सा दिलाना कैसे है, वो हमें वो रास्ते पता हाँ, है। I mean, if you're angry, do this, it will trigger him. But मैंने तो कुछ किया ही नहीं. हम सबको पता है हमारे पतियों की कमजोरियां क्या होती हैं, और हम जब गुस्से में होते हैं हम वही काम करते हैं जिससे उनको गुस्सा आता है, पर हम बोलते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया। Yeah, exactly. You know how far you can stretch, your husband can stretch, and you try triggering them to stretch them out of that, so that when he loses his temper, you can play victim. और आप उनको उस हद तक इरिटेट करते हैं, उस हद तक आप उनको पुश कर देते हैं कि वो अपना कंट्रोल खो देते हैं, और जब वो आप पे गुस्सा करते हैं तो फिर आप दिखाते हैं कि मैं बेचारी हूँ, आप मुझे पे चीख रहे हैं। I don't think all this will count in being a noble one. और मुझे नहीं लगता ये सब बातें एक भली स्त्री होने में काउंट होता है। Now, for example, Joshua does not like to eat rajma. एग्जाम्पल के लिए पास्टर जोशुआ को राजमा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। Now, just imagine every time if we have a fight, I only make rajma. और सोचिए जब भी मेरी उससे लड़ाई हो और मैं राजमा ही बना दूं, How long do you think he will hold his patience? और आपको क्या लगता है वो कितने टाइम तक अपनी पेशेंट को संभाल के रख सकते हैं? And then the day he blasts, if I go to Deepa as a victim, और किस दिन वो जब ब्लास्ट करे और वो मेरे पास आए बोलने के लिए, बोले देखो my husband is being so rude on me. देखो मेरा पति मुझसे कितने रूड होके बात कर रहा I है, cooked such a nice meal for him. मैं उनके लिए कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, And he literally instead of being grateful, he was shouting at me. इससे बजाय इसके कि धन्यवाद करें मुझ पे चीख रहे हैं वो। Did I cook food? क्या मैंने खाना बनाया? What wrong did I do? मैंने गलत क्या किया? That's triggering. और जो मैंने वो गलत किया वही है पतियों को तंग करना। When you know that person cannot tolerate, it goes to both, okay? When you know a person cannot tolerate certain things, don't trigger them doing that. जब आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता तो वो वाला काम मत करिए। Yeah, hold on to your words. अपने शब्दों को संभाल के रखिए। Second, spending habits. खर्चा करने की आदतें। Now, for me, my therapy is shopping. मेरे लिए मेरी जो थेरेपी है वो है शॉपिंग करना। Just imagine if I am on a spree of shopping without giving priority to the non-negotiable bills. सोच के देखिए कि मैं शॉपिंग पे खर्चा कर रही हूँ उन बातों पे खर्चा करने के बजाय जो नॉन नेगोशिएबल है, जिन पे खर्चा करना मेरे लिए अनिवार्य है। Do you think I'm making a wise decision? आपको लगता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है? Exactly. I'll be damaging my finances. मैं अपने फाइनेंसिस को खराब कर रही हूँ। So check on what are the things you're shopping. Find if it doesn't fit your bill, if it doesn't fit your budget, then I will say refrain from it. अगर आपके बजट में वो नहीं आता तो आप उस चीज़ पे अपना खर्चा ना करें, अपने आप को रोकें वो खर्चा करने से। Women take out revenge by shopping on their
if they want to take out revenge, this is one of the ways women do. They go shopping पतियों and disbalance the budget. पतियों से बदला लेने का एक बहुत अच्छा तरीका जो औरतें करती हैं वो करती हैं शॉपिंग, ताकि वो पूरा बजट हिल जाए और वो इस तरह से अपने पतियों से बदला लेती हैं. Yeah, as a wise woman, don't emotionally go for shopping. Don't be an emotional shopper. एक समझदार स्त्री होने के नाते इमोशन पे बेस्ड अपनी शॉपिंग ना करें. If you're emotionally disturbed, don't go for shopping as a revenge. अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं किसी बात से तो शॉपिंग करने के लिए ना जाएं. Your priority should be non-negotiables. जो बातें अनिवार्य हैं, जिन पे खर्चा करना अनिवार्य है, पहले उनको ध्यान में रखें. Like your bills, put your savings also in that, insurance, whatever, taxes. आपका इंश्योरेंस, आपका रेंट, जो भी आपकी लिस्ट है, आप उस पे पहले खर्चा करें. And after that, if you still have money for the month, then upgrade yourself in your education or your skills, because that will eventually bring you money. अगर आपके पास उसके बाद ही पैसा बच जाता है तो अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी एजुकेशन पे अपग्रेड करें, और क्योंकि वो फाइनली आपको और पैसा बनाने में हेल्प करेगा. By the way, Deepa is doing a PhD. दीपा पीएचडी कर रही है. That's a good way of spending money because she's upgrading her skills and her education. ये एक अच्छा तरीका है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वो अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रही है. Invest in things that will build you, upscale you, ऐसी चीज़ों पे खर्चा करें जो आपको अपग्रेड करेंगे. not on things that will actually crush or crumble your finances. ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका पूरा फाइनेंस डूब जाए, क्रश हो जाए. So use wisely your finances. तो अपने फाइनेंसिस को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. Just to show off and maintain a standard, that's actually like Deepak, white ant, digging your own foundation. राइट. जो हम शो ऑफ करने के लिए जो खर्चा करते हैं वो कुछ नहीं करता, वो हमारी फाउंडेशन को और कमज़ोर कर देता है. Nowadays, food habits, everything is online. खाने पीने की आदतें, अभी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है. It's like, oh, I'm too tired, let's do Swiggy. मैं बहुत थक गई हूँ, चलो स्विगी कर लेते हैं. Oh, I don't feel like cooking, let's do. And now Zomato also has a cafe. I just got to know yesterday. It's just a promo of Zomato cafe. और जोमेटो का कैफ़े है, मुझे ये बात कल ही पता चली. तो जब हम बहुत थक जाते हैं, कुछ बनाने का मन नहीं करता, तो चलो जोमेटो कर लेते हैं. Just take an inventory of how often are you spending on outside food. इस बात का हिसाब रखिए कि आप कितना फ्रीक्वेंटली खर्चा कर रहे हैं बाहर खाने पर. Again, I'm not against ordering food. My only intention is use it wisely. मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि आप बाहर से खाना ना मंगाएं, पर मैं कह रही हूँ कि इसको समझदारी से So इस्तेमाल these करें. are some of the things which is very easily creeping in all the families. ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही आसानी से लोगों के परिवारों में घुस गई हैं. Your online shopping habits. ऑनलाइन शॉपिंग करने की जो हमारी आदत है. I always tell my friends Jeff Bezos is rich because of me. वो कहते हैं कि जो अमेजोन का मालिक है वो सिर्फ मेरी वजह से अमीर हो रहा है. Yeah, and I think there are many women who contribute to him being a billionaire. और उसको बिलियनर बनाने में हम औरतों का बहुत बड़ा सहयोग है. हमारी जेब खाली हो रही है, he is becoming a billionaire. हमारी जेब खाली होती जा रही है, वो बड़ा अमीर आदमी होता जा रहा है. So be watchful and intentional about what your on your online things, because everything is just a fingertip. Normally you have a lot of spare time, so what you do, you're just going on scrolling. आपके पास बहुत सारा खाली समय होता है तो हम क्या करते हैं, हम बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं. Yeah, and if there was this TV online thing, always screaming, this is the last moment, in 30 seconds it's going to finish off. 5,000 people have ordered this, immediately order it. You know how hype by screaming, they just hike your curiosity of, if I don't do it within 1 second, then I lose that opportunity, a lifelong opportunity, as that's salvation. वो एड्स इस तरह से ऐड दिखाते हैं कि 5,000 लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं, आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं, अगर आपने अभी ऑर्डर नहीं किया तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे, जैसे कि वो हमारा उद्धार हो और हमें अभी लेना है. And they're very loud and fast, and how they trigger your emotions just to stir that this is the only thing that will make your life. और वो इतने लाउड होते हैं, इतने फास्ट होते हैं, वो इस तरह बात करते हैं कि आपको लगता है कि ये एक चीज़ है जो आपकी लाइफ में है, जिसके बिना सब कुछ खत्म हो जाएगा. हाँ, but is that the truth? No. पर क्या ये सच है? नहीं. So take an inventory. इन सब का हिसाब रखिए. Your screen time on phone. अपने फ़ोन पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं. There are many times when we are at home, we all, like Joshua, I, kids, everybody in the same room, but everybody is scrolling. ऐसे कई बार होता है कि हम सब एक ही कमरे में होते हैं, मैं, बस जोशुआ, बच्चे सब एक साथ बैठे होते हैं, बस सबके सब अपने अपने फ़ोन पर लगे होते हैं. Nowadays, phone is taking over the family times of communication and having a conversation. और जो हमारा फ़ोन है वो हमारा फैमिली टाइम ले रहा है, हमारा जो आपस की बातचीत का समय है वो ले रहा है. So check on that. And then what happens? Oh, it's too late. Let me order food.
और फिर जब हम पूरा दिन फ़ोन चलाते हैं तो हमें लगता है बहुत देर हो गई, अब खाना बाहर से ही मंगा लेते हैं। Oh, I last night I slept too late, so morning I'm late. मैं कल रात को बहुत लेट सोया था, सुबह बहुत लेट उठा, इसलिए खाना बाहर से मंगाएँगे। I slept very late, so I couldn't prepare for their lunch box. Canteen से खा लो. क्योंकि मैं बहुत लेट सोया था, लेट सोई थी तो सुबह खाना नहीं बना पाई, आज तुम कैंटीन से खा लेना। Sometimes, the hours, especially young girls, talk on the phone. जो यंग गर्ल्स हैं जब वो फ़ोन पे बात करती हैं, Check on hours you talk. I was with someone, traveling someone, and not kidding, for 2 hours this person was on the phone. One person talking to one friend. और ये जो यंग गर्ल्स हैं जब ये अपने फ्रेंड से बात करती हैं तो 2-2 घंटे दीदी बता रही हैं उन्होंने किसी को देखा वो 2 घंटे तक अपने किसी एक फ्रेंड से बात कर रहे थे And this is daily. और ये रोज़ का काम है। And I'm like, what do you have to talk so much for 2 hours? One day I literally got irritated and just shut that phone. If you're next to me, you're not talking for this long. Just do the important points and just shut it. और रोज़-रोज़ 2-2 घंटे बात करना, इतनी कितनी बातें हैं आपके पास? और कहती है एक बार ऐसा हुआ कि मैंने उससे बोला फ़ोन बंद कर दो, अगर तुम्हें मेरे साथ बैठना है तो अपनी इंपॉर्टेंट बातें करो और काम बंद करो, फ़ोन बंद करो। If I talk to my mom, if it exceeds and the conversation exceeds 15-20 minutes, she's like, don't you have any work at home? Cut it down, go get your work done. और अगर मैं कभी अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ और मेरा कॉल 15 से 20 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो मम्मी बोलती है कुछ काम नहीं है करने को, फ़ोन रखो, चलो काम करो जाकर। She's like, what did you make for breakfast? मम्मी पूछते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाया? बोले आज दूध कॉर्नफ्लेक्स था. आज दूध कॉर्नफ्लेक्स खाया था। बोले why दूध कॉर्नफ्लेक्स? You didn't make any food? अगर वो पूछते हैं दूध कॉर्नफ्लेक्स क्यों, कुछ नाश्ता वाश्ता नहीं बनाया था? So that's what I'm trying to communicate. We are so busy. दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लो, ब्रेड बटर खा लो. हम इतना बिजी हो चुके हैं, हम अपने बच्चों को बोलते हैं दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लो, ब्रेड बटर खा लो, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फूड फॉर देम। Busy not with productive things that is unproductive things that is killing our time. हम प्रोडक्टिव चीज़ों से जिनसे हमें कुछ फ़ायदा होगा हम उन बातों में बिजी नहीं हैं, जो हमारा समय खराब कर रही है हम उन चीज़ों में अपने आप को बिजी रखते हैं। Then Titus 2:5 says, after self-control, it says pure. Keep yourself pure. संयमी के बाद जो दूसरा शब्द है वो है पवित्र रखना। Sometimes, taking revenge is also alluring your husband's friends, or talking in a way that oh wow, you look so handsome, extra compliments to husband's friends than husband. That is also a way, not something which glorifies God. कई बार सिर्फ पतियों से गुस्सा दिखाने के लिए हम उनके फ्रेंड्स की बहुत तारीफ करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ परमेश्वर को महिमा नहीं देती है। Yeah, seeking validation from others rather than your husband. जब हम औरों से तारीफ सुनना मांगते हैं बजाय कि अपने पति के, वो चीज़ भी परमेश्वर को महिमा नहीं देती है। Be a good planner. एक अच्छा प्लानिंग करने वाला बनिए। As a wife, plan your day, plan your time, plan everything. What you're feeding, like breakfast. If you don't plan, दूध कॉर्नफ्लेक्स ही मिलेगा. अपना एक अच्छी पत्नी होने के नाते आपको अपना डे प्लान करना होगा कि आपको क्या बनाना है, क्या खाना है, दिन भर में क्या करना है। यदि आप प्लान नहीं करेंगे तो फाइनली बच्चों के हिस्से में दूध कॉर्नफ्लेक्स ही आएगा। Yeah, if you have guests coming in, plan what you're going to feed them. Hospitality is also a good quality of a noble woman. अपने घर में जब आपके मेहमान आते हैं तो प्लान करिए कि आप उनको क्या खिलाने वाले हैं। लोगों को अच्छे से ग्रहण करना भी एक भली स्त्री का चरित्र का एक कैरेक्टर है। Your hospitality matters. आप किस तरह से मेहमानों को स्वागत करते हैं ये बहुत मैटर करता है। What you do at home, it also adds respect to your husband. आप अपने घर पे क्या करते हैं ये चीज़ आपके पति को आदर दिलाता है। In Proverbs 31, I'll have to take that. He is honored at the gates where he takes seats because of his wife. जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। What is the husband's role in that? It's talking about a noble woman. How you carry yourself will actually bring respect and honor to your husband in his family, in his friend circle, in his work area. ये जो चैप्टर है ये एक भली स्त्री के बारे में, इससे पति के बारे में क्या हो सकता है, पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं, जिस तरह का आपका चाल चलन है, वो आपके पति को उनके काम की जगह पर, उनके परिवार में, उनके फ्रेंड्स में इज्जत दिलाता है। So be careful, and when you have guests at home, how are you treating your guest? जब आपके घर पे मेहमान आते हैं आप उनको किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, Because how you treat will depend what they think of your husband. आप उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो आपके पति के बारे में क्या सोचते हैं। Busy at home. घर पे बिजी रहना।
हम busy तो है, but maybe mostly outside. You know how to identify whether a woman is busy at home or outside or lazy? आपको कैसे पता चलता है कि एक स्त्री घर पर बिजी है या वो आलसी है? Mostly three things of a house speaks out loud. घर की 3 चीज़ें आप चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। When you enter, just check the fans. जब आप घर में घुसते हैं, उनके पंखे देखिए। Fan is loud enough to know whether the woman or the lady of the house is busy in the house or elsewhere. आपको उनके पंखे देख के समझ में आ जाएगा कि वो जो स्त्री है वो घर में बिजी है या वो कुछ भी नहीं कर रही है। Now you know what I mean. आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। Check the curtains. पर्दे देखिए। Third thing, use your washroom and see. और तीसरा, उनका घर में जाके उनका वॉशरूम चेक करिए। These three things are enough to know whether a woman is busy in the house or not. ये 3 चीज़ें आपको बता देंगी कि स्त्री घर में अपने कामों में बिजी है या नहीं है। Now people may not say it on the face, but they go with a feedback check about you. हो सकता है लोग आपके चेहरे पर ये बात ना बोलें, पर वो आपके लिए एक फीडबैक लिस्ट तो बनाकर लेके चले गए हैं अपने मन में। Now I'm not saying that you literally go and do it all by yourself, do with your hands, but everybody here is working, but we have the facilities of outsourcing it. मैं ये नहीं कह रही कि ये सब काम अपने हाथों से करिए, पर हो सकता है आप लोग काम कर रहे हो, पर हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम बाहर से हेल्प ले सकते हैं इन कामों के लिए। If you can't afford outsourcing all this work, one day take out time as a family and do all these things. और अगर आप बाहर से हेल्प नहीं ले सकते फाइनेंशियली, तो आप एक दिन निकालिए और पूरा परिवार मिलके उस काम को करिए। Nowadays, it's not that husbands don't work. They also equally work. Plan your things, plan out these things and get your house organized. और आजकल ऐसा नहीं है कि पति लोग काम नहीं करते हैं, घर में पति लोग भी बराबर हाथ बटाते हैं। अपने दिन को अच्छे से प्लान करिए, इन कामों को अच्छे से प्लान करिए और ख़त्म करिए। Yeah, as a family, take responsibility of your house. एक परिवार के नाते अपने घर की जिम्मेवारी लीजिए। But a woman plays a vital role in this. If she doesn't take interest, nobody will take interest. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो पत्नी का है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेगी तो घर में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। And also think, if you don't teach these things to your kids, they will never learn. और अगर आप ये बातें अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो ये बातें कभी नहीं सीखेंगे। If they are used to living in a disorganized house, they themselves will never have learn to live in an organized place. अगर आपके बच्चे एक जो अथल पथल सा घर है उसमें रह रहे हैं, तो वो अपने फैमिली में आगे बढ़कर भी नहीं समझेंगे कि उसकी क्या वैल्यू है। So take responsibility. तो जिम्मेवारी लीजिए। Just because you are a professional woman doesn't mean you can bypass the responsibilities of the house. क्योंकि आप काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर कर सकते हैं। The thing is, a wife is not, when you talk about a wife, do you think about the prime minister, president of the country, the name of an actress, or the CEO of a bank? What do you think? जब आप पत्नी शब्द सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं या किसी बहुत बड़ी एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं या किसी कंपनी की सीईओ की बात कर रहे हैं? Your professional achievements doesn't qualify you as a noble wife. आप प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं उस बात से आप इस बात के लिए क्वालिफाई नहीं हो जाते कि आप एक अच्छी पत्नी हैं। When you are home, keep your professional achievements outside. जब आप घर में होते हैं तो अपने जो आपकी अचीवमेंट्स हैं एज अ प्रोफेशनल उसको घर से बाहर रखिए। When you are home, a husband needs a wife. जब आप घर में हैं तो आपके पति को एक पत्नी चाहिए। Your children needs a mother. आपके बच्चों को माँ चाहिए। If you're a doctor, if you're a teacher, if you're a principal, if you are a professor, keep that part of you outside and don't be a teacher to your husband. Don't be like a boss to your husband. जब आप घर में हैं तो इन सब चीज़ों को बाहर रखिए। अगर आप टीचर हैं या बॉस हैं तो अपने पति पे वो नहीं दिखाइए। How you care for your family is what matters. आप अपने परिवार का कितना ध्यान रखते हैं उससे वो मैटर करता है। How you're providing for your family. If you don't have time, outsource it. Arrange someone who will cook for your family on your behalf. आप किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं वो मैटर करता है। यदि आपके पास समय नहीं है बनाने का तो अरेंजमेंट करिए कि कोई आए और उनके लिए बना कर दे। Yeah, make arrangements. Take responsibility. अरेंजमेंट्स करिए पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। At home, a husband needs someone who's a companion. घर पे पति को कोई ऐसा चाहिए जो उसका साथी हो। He wants someone who loves him, cares for him. उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसको प्यार करता हो, उसका ध्यान रखता हो। He wants someone who will add value to his life. उसको कोई ऐसा चाहिए जो उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता हो। He wants someone who will fill his loneliness. कोई ऐसा जो उसके अकेलेपन को दूर करता हो। He wants someone whom he can share his feelings, his hearts, his ups and downs. कोई ऐसा जिससे वो अपने मन की बातें, अपने उतार चढ़ाव डिस्कस कर सके। He does not want a nurse, a doctor or a teacher. Yeah, that's once in a while.
उसको आपका प्रोफेशन, आप टीचर हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो नहीं चाहिए. When you come home, okay, did you do this? Did you do this? Did you do that? Tick, 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 this done, that done. No, that will be irritating for him. अब जैसे आप घर पहुंचे, आप उसे पूछो ये किया, ये किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये सब बातें उनको इरिटेट करेंगी. It's your love and gentleness and how you care for your family. That's what makes you a noble woman. आपका परिवार में प्यार, उनका ध्यान रखना, ये आपको एक भली स्त्री बनाता है. Proverbs 24, नीति वचन 24, 3 and 4. तीसरा और चौथा पद. By wisdom a house is built, and through understanding it is established. घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है. Through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasure. ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाऊ वस्तुओं से भर जाती है. It says a house is built by wisdom. ये बताता है कि जो घर है वो बुद्धि के द्वारा बनता है. This is not something which just automatically happens. ये ऐसा कुछ नहीं जो अपने आप हो जाएगा. When you, yes, by word of God does say that unless the maker makes a house, the laborer's work is in vain. But that's God part. Even we have a part to play. बाइबल में लिखा है कि जब तक यहोवा ही घर को ना बनाए, बनाने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ है. पर वो परमेश्वर का पार्ट है, हमें भी अपना पार्ट करने की जरूरत है. We can't ignore or bypass our part that we have to play to build a house. हम अपने पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते. जो घर बनाने के लिए हमारा सहयोग चाहिए, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते. The word says, by wisdom a house is built. Build is a process. लिखा है कि बुद्धि से घर बनता है. बनना जो है वो एक प्रक्रिया है. Sometimes, women, they are very emotionally unstable. जो स्त्रियां होती हैं वो इमोशनली स्थिर नहीं होती हैं, थोड़ी सी अनस्टेबल होती हैं. Yeah, I know of a friend. Anytime you talk to her, she always has something to crib and complain about. मेरी एक फ्रेंड है, आप उसको कभी भी कॉल कर लीजिए, उसके पास कुछ ना कुछ कंप्लेन करने के लिए हमेशा होता है. She always has something to cry about. उसके पास कुछ ना कुछ हमेशा होता है जिसके लिए वो रो रही होती है. Oh, there is a fly outside the house, so dirty. घर के बाहर मक्खियां हैं, कितना गंदा हो रहा है. I fell sick. मैं बीमार पड़ गई. Oh, the maid didn't turn up. Oh my God, what a day! Such I'm having a bad day because my maid didn't turn up. मेरी आज काम वाली नहीं आई, कितना ही बेकार दिन था आज मेरे लिए. Oh, today the weather is bad, so my kids fell unwell. I'm having a bad day. आज मौसम खराब था, मेरे बच्चे बीमार पड़ गए, फिर आज बेकार दिन था Oh, मेरा. today a guest turned up without any intimation. Oh my God, I need to cook. It's too much of work. I'm having a bad day. आज बिना बताए मेहमान आ गए, इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा, आज का दिन बहुत बेकार गया. Don't be women who are always complaining about anything, about daily thing. ऐसी स्त्री मत बने जिसके पास कुछ ना कुछ रोज कंप्लेन करने के लिए हो, घर के रोज के दिन के बारे में. Take responsibility, whether planned, whether crisis. Take responsibility. चाहे आपके जिंदगी में जो हो रहा है वो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए. Now there are many young married women in this church. चर्च में बहुत सारे यंग मैरिड लेडीज हैं, यहाँ पर वुमेन हैं. Don't be too clingy to your parents after your marriage. अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मत जुड़े रहिए शादी के बाद. Like even after marriage, I need to, if you're in the same city, I'm every other day going to your parents, visiting your parents, hours in parents' house. आपके पर अगर आपके माँ बाप आप ही के शहर में रहते हैं तो हर हफ्ते उनके मिलने जा रहे हैं, उनके पास टाइम स्पेंड कर रहे हैं. Now again, I'm not against visiting parents. मैं बिल्कुल भी इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि आप अपने माँ बाप के पास जाएं. My point is, when you're newly married, take responsibility of your new house, and rather than taking responsibility of your new house, if you're spending all of the time in your parents' house and ignoring the work that is needed in this place. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको अपने उस परिवार की जो नया नया बना है उसकी जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है. और यदि आप वो नहीं करेंगे और अपना सारा समय अपने माँ बाप के घर पे बिताएंगे, उनसे बात करने में बिताएंगे, तो ये वाला काम इग्नोर हो जाएगा. I know of a couple who got married, and every day this wife would go to her parents' house. मैं जानती हूँ कुछ ऐसे कपल्स को जिनकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, और वो वाइफ हमेशा अपने माँ बाप के घर विजिट करती रहती है. The husband goes to work, breakfast not prepared. हस्बैंड काम पे जाते हैं, उनके लिए नाश्ता नहीं बना होता. Now she's a wife, not that she was a working woman, she was a housewife. वो एक हाउस वाइफ है, वो जॉब नहीं करती है. Evening husband comes from work, there's no food, where is she? Parents' house. और जब वो शाम को घर आता है, पति पूछता है कि खाना नहीं बना, कहाँ हो तुम? मैं मम्मी पापा के घर पर हूँ. Eventually what happened? Conflict started happening. और क्या होगा? उनके बीच में मतभेद शुरू हो जाएंगे. And just imagine what happened. और सोचिए क्या हुआ. 3 months they both parted ways. 3 महीने की शादी और उन्होंने वो अलग हो गए. The marriage didn't survive. शादी नहीं चल पाई. Why? Because
she wasn't ready to take the responsibility of a new house. इसलिए क्योंकि वो अपने उस नए परिवार की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं थी. Every time going to parents' house, why should I work in this house? Am I maid in the house? मैं इस घर में क्यों काम करूं, मैं यहाँ पे क्या नौकर हूं, और वो अपनी मम्मी के घर चले जाना. Now they were just newly married, just beginning a new life. बिल्कुल अभी अभी शादी हुई थी, एक नई शुरुआत कर रहे थे वो लोग. So if there are times you can afford a maid, go ahead. But if there are times where she's not available, take responsibility of your house. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं घर में कामवाली रखना, रखिए, पर अगर नहीं कर सकते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने घर की. As a wife, you can either make a house or break the house. एक पत्नी होने के नाते आप अपना घर बना भी सकते हैं और उसको बिगाड़ भी सकते हैं. This also implies to men, but I think women can play a much stronger role in building. पतियों पे भी ये बात लागू होती है, पर मुझे लगता है पत्नियों पे ये बात ज़्यादा लागू होती So what I'm saying is women can either make or break. है. स्त्रियाँ बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं. As a woman, make your house a happy place. एक पत्नी होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते अपने घर को एक हैप्पी प्लेस बनाइए. Speak kindness over your husband. अपने पति पर अच्छी बातें, दयालु बातें बोलिए. Encourage your husband. अपने पति को उत्साहित करिए. Your words should motivate him and not demotivate him. आपके शब्द उन्हें उत्साहित करने वाले होने चाहिए, उनको नीचे गिराने वाले नहीं होने चाहिए. The way you speak to him will either encourage him to stretch himself and work harder, or the way you speak to him will demotivate him and shut him down from doing any further. आपके शब्द उनको उत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं और काम करने के लिए, और आपके शब्द उनको बिल्कुल बंद कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उनको बिल्कुल विड्रॉ करने में आपके शब्द बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. If you accept your husband the way he is and talk to him with kindness and encourage him, that's the way he feels loved. आप अगर अपने पति को जैसे वो हैं वैसे ही स्वीकार करें, उनसे प्यार से बात करें, उनको मोटिवेट करें, उनको ये बातें हैं जो अच्छी लगती हैं, जो बातें वो पसंद करते हैं. Men like to hear good about them. Their praise, they thrive on their praises. आदमियों को अच्छी अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, वो उस बात में बहुत खुश होते हैं. Their appreciation works as an energy for them. हमारी तारीफें उनके लिए एनर्जी का काम करती हैं. Yeah, because created in the image and likeness of God, God made everything and said it is good. He only appreciated his work. So men are also like that. They want them to be appreciated. हम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं, और परमेश्वर ने जो सब कुछ बनाया उन्होंने खुद ही अपनी तारीफ कर ली कि अच्छा है, और हम भी क्योंकि वैसे ही हैं इसलिए हमें भी अपनी तारीफ सुनना पसंद है. But the same for women also. Appreciate them also for what they do. और बिल्कुल वैसा स्त्रियों के साथ भी है, इसलिए उन्हें भी उनकी भी तारीफ करें जब वो अच्छा काम करें. Sometimes women like to take revenge or punish their husbands through their silence. कई बार स्त्रियां अपने पतियों को जो पनिश करती हैं वो अपने चुप रहने से करती हैं. So don't get into that either silent or constant cribbing, complaining. तो ऐसा मत करिए, या तो बिल्कुल चुप हो जाइए और बोल रहे हैं तो बस कंप्लेन करते रहें, हर बात के लिए कुड़कुड़ाते रहें. Be a supportive wife. एक ऐसी वाइफ बने जो सपोर्ट करती है. Yeah. If you're constantly cribbing, complaining, only highlighting his flaws and everything, a time will come when he will lose interest or expect things from you. अगर आप हर बार कंप्लेन करते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, उनकी कमियां उन्हें दिखाते रहेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा जब वो आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे. But it's your appreciation, your encouragement, your comfort that makes him to walk an extra mile. पर आपका उनके लिए उनको तारीफ करना, उनके लिए अच्छे शब्द बोलना, उनको मोटिवेट करना उन्हें आगे पुश करता है और काम करने के लिए. How much you trust him is an energy for him. आप उन पे कितना विश्वास रखते हैं, ये बात उनके लिए एनर्जी का काम करता है. Proverbs 27:15 says, a quarrelsome wife is as annoying as constant tipping on a rainy day. एक झगड़ालू पत्नी वैसी है जैसे एक छत से पानी टपकता रहता है. Stopping her complaints is like trying to stop the wind. उसको रोकना किसी हवा को रोकने के बराबर है. Or trying to hold something with greased hands. और ऐसा कुछ पकड़ना जो चिकने हाथों से पकड़ रोकने के समान है. Is that possible? क्या ये सच है? कैसा हो सकता है? There are women, we are recently dealing with someone, and the trouble he is going through his marriages was what the counsel they are as a couple they are getting from professional counselors. अभी हम एक कपल से बात कर रहे हैं और राइट
Hmm. एंड और उनको वो एक काउंसलिंग ले रहे हैं प्रोफेशनल से, और जिस तरह की वो काउंसलिंग ले रहे हैं इज नॉट, is taking, instead of bringing them close, it is taking them apart. और जिस तरह की उनको काउंसलिंग मिल रही है बजाय उसके कि वो और करीब आए, वो अलग हो रहे हैं. It's a task to keep like telling how many times he made mistakes, how many times he made flaws, just to keep an account of how many wrongs he did and tell that to his wife. और वो उनको कह रहे हैं कि जितनी बार भी उसने गलती की उसको लिखो, कितनी बार उसने आपको गलत किया है वो लिखो, और जाके वो उनकी पत्नी को बता रहे हैं. Daily he has to do that, and what is happening, instead of coming close, they're just moving apart. और वो रोज़ ऐसा कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि बजाय कि वो और पास आए, वो और दूर होते जा रहे हैं. So I encourage the wives, don't be someone who's constantly cribbing, complaining, only showing his flaws. तो मैं कहना चाह रही हूँ, आप ऐसी पत्नी ना बने जो हमेशा कुड़कुड़ाती रहती हैं और पतियों को उनकी गलतियाँ दिखाती रहती हैं. You know, interesting thing, every fight in a marriage won is actually lost. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, शादियों में जो है जितनी भी बार भी आप लड़ाई जीतते हो, आप एक्चुअली हारते हो. How you know? कैसे आपको पता? Because if all you're trying to do is win an argument, you're hurting your spouse. क्योंकि जितनी बार भी आप एक आर्गुमेंट जीतने की कोशिश करते हैं, उतनी बार आप अपने पति को या पत्नी को दुख पहुंचाते हैं. Don't try to win an argument in your marriage. अपनी शादी में जो आर्गुमेंट्स है उनको जीतने की कोशिश ना करिए. Even if you think you won, but actually you hurt your spouse. आपको लगता होगा कि आप जीत गए हैं, पर आपने इवेंचुअली अपने पति को या अपनी पत्नी को दुख पहुंचाया है. Now the point is, what do you want to do? Do you want to be a winner, or do you want to hurt your spouse? आप क्या चाहते हैं? आप जीतना चाहते हैं और अपने पति को दुख पहुंचाना चाहते हैं. Ladies, respect your husband. अपने अपने पतियों का आदर करें. Respect your husband in private, in public, before your family, before your kids. अपने पति का आदर करें, चाहे वो आप उनके साथ अकेले में हो, चाहे आप उनके साथ पब्लिक में हो, बच्चों के सामने, परिवार के सामने, हर जगह पर अपने पति का आदर करें. Your respect for him will always pay back as love for you. आप जितनी बार भी अपने पति का आदर करते हैं, वो आपको बदले में प्यार के रूप में मिलता है. If you try to disrespect or insult him, it is actually you are the one who's destroying your marriage. जब भी आप उनका निरादर करते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी शादी खराब कर रहे हैं. I have witnessed wives who really speak cursed languages over their husband and before the kids. मैंने ऐसी पत्नियों को देखा है जो अपने बच्चों के सामने अपने पतियों के लिए बहुत गलत बोलती हैं, And that's wrong. और वो बहुत गलत बात है. Be careful on how you speak publicly or how you treat your husband publicly, because eventually what you are doing, your next generation is learning. बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि आप अपने पतियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जब वो पब्लिक में है, क्योंकि वही आपकी पीढ़ी सीख रही है और वैसा ही वो आगे करेंगे. And believe me, if this generation you have 5 best qualities, only 3 or 4 is transferred in the next generation, and every generation you are just losing every one good thing, I guess. अगर आपके पास 5 अच्छी चीज़ें हैं तो आप इस बात को जान के रखिए कि आप सिर्फ 2 या 3 ही आगे पास करेंगे, और हर पीढ़ी के साथ वो कुछ ना कुछ कम होता जाएगा. So be careful, and men cannot handle insult or disrespect. और जो पति हैं, जो पुरुष हैं, वो निरादर को और इंसल्ट को हैंडल नहीं कर पाते. If that's constant with you, then eventually again you are pushing your marriage towards damages, and then don't play victim saying he never treated me right. और अगर आप ऐसा लगातार करते रहेंगे तो आप अपनी शादी को ख़राब करें, फिर बाद में विक्टिम प्ले मत करिएगा कि आपकी शादी में आपके पति ने आपको ठीक से नहीं रखा. Yeah, constantly don't remind him of his flaws, failures, losers. Things happen. People are learning. Even he's progressing as a husband. बार बार उनको उनकी कमियां मत बताते रहिए, कहाँ वो फेल हुए उन्हें मत जताते रहिए, क्योंकि होता है, हम सब सीख रहे हैं और हम सब इसी तरह से ग्रो करते हैं. I heard this very interesting say. मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगी. Satan knows your name but will always address you by your sin. शैतान को आपका नाम पता है, पर वो हमेशा आपको आपके पापों से आपको संबोधित करता है. Jesus knows your sin but will always call you by your name. और यीशु मसीह को आपके सारे पाप पता हैं, पर वो हमेशा आपको आपके नाम से पुकारते हैं. As a wife, how are you always addressing your husband? एक पत्नी के नाते आप अपने पति को कैसे बुलाते हैं? If every communication is all about you did this, you hurt me, you made wrong, you made
you failed in this. अगर आपकी सारी बातचीत ऐसे हैं कि आपने ये गलत किया, आपने यहाँ फेल हो गए, आपने मेरे साथ ऐसा गलत किया, I just want all the husbands to look at their wife and give a smile. मैं चाहती हूँ कि सारे पति अपनी अपनी पत्नियों को देखें और एक स्माइल दें. I'm not saying anything. मैं कुछ नहीं बोलूँगी. Show me of a verse where Jesus is constantly reminding of where you failed. मुझे एक वर्स बता दीजिए जहाँ यीशु मसीह आपको आपकी गलतियाँ बार बार याद दिला रहा हो. Even after knowing everything, he will never come to you, oh, you know, last time you did that. सब कुछ जानने के बावजूद भी यीशु मसीह आपको आगे कभी नहीं कहता तुझे पता है लास्ट टाइम तूने फिर ऐसे ही किया था. But every time he will come to us, it's always encouraging. जितनी बार भी वो आपके पास आते हैं वो आपको उत्साहित करने के लिए आते हैं. He will never remind us of our past sins or failures or flaws, but will always speak words to build a future. वो कभी भी आपको आपके अतीत की कमियां, आपकी खामियां, आपकी गलतियां बताने के लिए नहीं आते. वो हमेशा आपको एक उम्मीद, एक आशा देते हैं भविष्य के लिए. Women, if you want to see a better future, take an inventory of what you speak to your husband. अगर आप एक अच्छा भविष्य चाहते हैं स्त्रियों, तो आप देखिए कि आप अपने पतियों से क्या बात करते हैं. Let go of your ego. अपनी ईगो को जाने दीजिए. Marriage is full of disagreements. शादियों में डिसएग्रीमेंट होना आम बात है. Like Joshua was preaching last time, the day you get married, that's the moment when your conflicts start. When the officiator says, "Now you two shall be one," then itself the fight starts. Which one? जिस दिन आपकी शादी होती है, जैसे पास्टर जोशुआ ने लास्ट टाइम बताया, और जैसे ही आपको पास्टर कहते हैं कि आज से आप दोनों एक होंगे, कॉन्फ्लिक्ट उसी दिन शुरू हो जाता है. कौन एक? कौन सा वाला है? Basic arguments in a marriage is about proving each other right. और जो सबसे बेसिक जो लड़ाइयाँ होती हैं, आर्गुमेंट होते हैं, वो ये होता है प्रूफ करना कि दोनों में से ठीक कौन है. But if that argument is taking to destruction, then what's the point of proving you are right? पर अगर वो आर्गुमेंट आपकी शादी को ख़त्म करने की तरफ लेके जा रहा है, तो उस आर्गुमेंट में राइट प्रूव होके क्या ही मिल जाएगा. Ladies, not every disagreement needs to take the shape of a war. हर एक डिसएग्रीमेंट जहाँ पर आप सहमत नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर उस बात को आप लड़ाई तक खींच के ले जाएं. Every disagreement is not worth fighting. हर एक असहमति लड़ने के लिए इट्स नॉट, वो ज़रूरी नहीं कि उस पर लड़ा जाए. Minor things, ignore. छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया जा सकता है. Major things, it's a talk. It is a concern, but don't get into argument. Try to communicate. पर अगर कोई बड़ी बात है तो उस पर आर्ग्यूमेंट ना करें, बात करें. Yeah, for example, like minor things like, you know, Deepa can't eat if there is raw pyaz. माइनर छोटी बात यह है कि मैं कच्चा प्याज नहीं खाती. Sameer can't eat if there is no kacha pyaz. समीर खाना ही नहीं खा सकते अगर वहाँ पे कच्चा प्याज नहीं है. What if day one of their marriage she had made an issue, I am not going to eat if there is kacha pyaz on the table. और अगर पहले दिन मैं ये बोलती अगर टेबल पे कच्चा प्याज हो तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी. And what if Sameer stick to his point, if there is no kacha pyaz, I am not going to eat in the house, I will go order outside food or eat outside or eat in neighbor's house. और अगर समीर ये बोलते कि अगर टेबल पे कच्चा प्याज नहीं आया तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, बाहर जाके खाना खाऊंगा. They could have made it an issue, इसमें से एक इशू बन सकता था. but did they make it? क्या हमने बनाया? Be wise on what to fight and what to let go of. पर ये समझदारी की बात है किन बातों पे लड़ना है और किन बातों को जाने देना है. Make room for each others. Make room for each other. एक दूसरे के लिए जगह बनाइए. It's not always your way is right and his way is wrong, or, you know. ज़रूरी नहीं है कि हर बार कि मेरा रास्ता ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, जो सामने वाला कर रहा है वो गलत है, या जो वो कर रहा है वो ठीक है और जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है. Yeah, make room for both. Whatever, like if it fits in the character of God, I would like your scale should be the character of God. थोड़ी सी जगह बनाइए, लोगों को थोड़ा सा जगह दीजिए और जो परमेश्वर का चरित्र है उस पे अपने आप को फिक्स कीजिए. Yeah, and some minor things like if he wants to sit on the floor and eat, ignore. अगर कोई नीचे बैठ के खाना खाना चाहता है, खाने दीजिए, इग्नोर कर दीजिए. She's more of a vegetarian, they're more of a non-vegetarian. मैं ज़्यादा वेजिटेरियन पसंद करती हूँ, वो नॉन वेज पसंद करते हैं. Don't make it a rule of the house because I don't like non-veg, I'm not going to eat. Make room for everyone. अगर आपको नॉन वेज नहीं पसंद है तो ऐसा मत करिए कि नॉन वेज मैं नहीं खाती तो घर में नहीं बनेगा. Yeah, that's what. Be wise on what to fight and what not to fight. समझदारी दिखाइए किन बातों पे लड़ना है और किन पे नहीं लड़ना है. Things take an ugly turn when it is not communicated well. चीज़ें तब खराब हो जाती हैं जब उनके बारे में तरीके से बात नहीं होती है.
the best that works in an argument is communicate your feelings, communicate your why behind the what. सबसे अच्छा तरीका है बात करना. आपने जो किया वो क्यों किया, उसके पीछे क्या रीज़न था, उसके बारे में बात करना. See, the word of God says, through a house is established through understanding. वो अंडरस्टैंडिंग से स्थिर होता है. Try, instead of just getting into argument of my way or highway, try to understand the why behind the what. हमेशा आर्गुमेंट करना कि तुम्हारा रास्ता ठीक है, तुम्हारा तरीका ठीक है या मेरा तरीका ठीक है. बात करें कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं के बारे में. Have patience to understand each other's point. एक दूसरे का पॉइंट समझने की कोशिश करें. My problem is, when it comes to communication, I'm very limited with my words. मेरी प्रॉब्लम क्या है, जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो मेरे पास बहुत कम शब्द हैं. Every time I was upset and Joshua would ask me what happened, और जब कभी भी मैं अपसेट होती हूँ और पास्टर जोशा पूछते हैं कि मुझे क्या हुआ है, I was like, can't you understand? मैं हमेशा बोलती तुम्हें समझ में नहीं आता. You just came over from a meeting. You were sitting in the crowd of thousands. That person on the right, you have this problem. You don't know what my problem is? तुम 1000 लोगों की मीटिंग में जाते हो तो तुम्हें दिख जाता है कि वो जो उस कोने में लड़की बैठी है उसको प्रॉब्लम है. तुम्हें नहीं दिखता है मुझे क्या प्रॉब्लम है. हाँ, पूरे गांव को तो समझ में आता है, मेरा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा. यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर विलेज प्रॉब्लम, नॉट माइन. So I never communicated what my feelings were. मैं कभी भी वो बता नहीं पाई कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं. And he could never understand because somehow God never revealed that to him. और वो इसलिए समझ नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर ने कभी उन पर रिवील नहीं किया. So our conflicts were only like, because of that lack of understanding, he was doing his way, I was doing things my way, and we were clashing. और क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने तरीके से काम करते थे और मैं अपने तरीके से काम करते थे, वो चीज़ें ख़राब हो रही थी. Gradually, what happened when you don't understand the reasons, it just keeps piling up. और जब आप रीज़न नहीं समझ पाते हैं, चीज़ों का कारण नहीं समझ पाते, तो वो एक के ऊपर एक इकट्ठा होकर एक बड़ा सा ढेर बन जाता है. As long as you're busy, it's fine. जब तक आप बिजी हैं तब तक तो ओके है. When you don't understand things, when everything is turning against you, जब आप नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को जो आपके अगेंस्ट होती जा रही हैं, I encourage you, hold on to the covenant that you made before God. मैं आप सबको उत्साहित करूंगी, उस वाचा को पकड़े रहिए जो आपने परमेश्वर के सामने एक दूसरे से बांधी थी. Because God is a witness to your marriage. क्योंकि परमेश्वर आपकी शादी का साक्षी था. And when He is in that marriage, और जब वो आपकी शादी में है, He will make a way out. वो आपके लिए रास्ता बनाएगा. Sometimes things can be so choking that you might be at the verge of quitting. कई बार चीज़ें इतनी घुटन वाली हो जाती हैं कि आपको लगता है कि आप इसको आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आपको लगता है इसको छोड़ देना चाहिए. But ask yourself, why are you in this marriage? पर अपने आप से सवाल कीजिए कि आप हैं क्यों इस रिश्ते में. Are you because of family pressure, social stigma, or just for security and safety reasons? आप अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से है, दुनिया का सोचो कि उसके वजह से है, या जो आपको उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसकी वजह से है. आपको पूछने की जरूरत है अपने Or आप do you से. really believe this is from God and marriage is above all? या फिर आप विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है और ये सब रिश्तों में सबसे ऊपर है. If you love the Lord and you know the Lord, then stick on to this thing till the time He makes a way. और यदि आप परमेश्वर को प्यार करते हैं और आप इस बात पे विश्वास करते हैं, इस बात पर टिके रहिए कि ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेंगे. Submission to husband, it's not conditional. आपको पता है पतियों के अधीन होना कंडीशनल नहीं है. It's not like you provide for me, you protect me, you pay for me finances, but I will not submit to you. I will not listen to you. I will not obey you. That is not submission. ऐसा नहीं है कि आप मेरे लिए बिल पे करेंगे, आप मेरे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे पर मैं सबमिट नहीं करूँगी. सबमिशन का मतलब ये नहीं है. Yeah, you don't put terms to submission that only if you do this, I will listen to you, I will obey you. Submission is not making you a slave to your husband. That's actually the place where you grow in your liberty and freedom. अधीन होना गुलामी नहीं है और आप अधीन कंडीशन के साथ नहीं हो सकते कि यदि आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं अधीन होंगी. अधीन होना एक्चुअल में एक परमेश्वर की ओर से आज्ञा है और ये आपको स्वतंत्र करता है. It's your submission to your husband that will establish you as a woman and as a wife. जब आप अपने पति के अधीन होते हैं वो आपको एज अ वाइफ स्टैब्लिश करता है. Interestingly, when you read Genesis where Eve eats the fruit, जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे, जब हवा ने उस फल को खाया, she ate the fruit. उसने फ्रूट खा लिया.
Then she gave the fruit to Adam. और तब उसने वो फल जाकर आदम को दिया। When he ate the fruit, that's when their eyes opened. और जब आदम ने वो फल खाया तब उनकी आंखें खुली। When Eve ate, eyes did not open. जब हवा ने वो फल खाया तब आंखें नहीं खुली थी। When Adam ate, that's when the word says, and their eyes opened. और जब आदम ने फाइनली वो फल खाया तब लिखा है कि उनकी आंखें खुली। I'm assuming if Adam had not eaten, maybe the world would have not fallen in sin. और मुझे लगता है यदि आदम ने वो फल नहीं खाया होता तो शायद वो पाप में ना गिरते। What my point is, there under your husband there is protection for you, and there is a covering that comes over you because of your husband. मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन, एक कवरिंग आती है वो तब आती है जब आप अपने पति के अधीन होते हैं। Don't think submission to wife is enslaving me. ये मत सोचिए कि पति के अधीन होने का मतलब है कि आप उनके गुलाम हो गए। Your submission to him will actually make you a beautiful person, because that's where your freedom and your prosperity comes from. अपने पति के अधीन होना आपको ब्यूटीफुल बनाता है, आपके लिए एक तरह की आज़ादी को देता है और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Ezekiel chapter 16, that's an interesting verse. Ezekiel chapter 16 verse 49. देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। Now this was the sin of your sister Sodom. She and her daughters were arrogant, overfed, and unconcerned. They did not help the poor and needy. This was the sin of Sodom and Gomorrah. ये सदोम और गोमा का पाप था। We always think that it was only sexual immorality, but if you read this verse, it's talking about how she and her daughters were arrogant. हमें लगता है कि सदोम और अमोरा में जो सेक्सुअली गलत काम हो रहे थे वही रीजन था उनके नाश होने का, पर लिखा है कि वो दोनों बहुत घमंडी थी। I think one of the challenges that in my marriage was the arrogance that was coming in our marriage, that I was right, he is right, when we stick that my way or the highway. और मुझे लगता है शादियों के टूटने का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि घमंड आ जाना, ये बात को कहना कि मैं सही हूँ और वो सोचे कि वो सही है। Not taking care of poor, being overfed. Overfed can be either gluttony or just being greedy. और भर पेट खाना हो सकता है कि आपका पेटूपन हो या आपका लालच हो। So, building your marriage is being intentional about what you do and how you do. शादी बनने का जो प्रक्रिया है वो ये है कि आप जो करते हैं वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। Be careful if you are going into arrogance by if it's leading you into arrogance, or if it's really leading you to forgive each other and go ahead. इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप कर रहे हैं उससे आप घमंडी बन रहे हैं या फिर आप एक दूसरे को माफ कर रहे हैं। Your arrogance will only take you to destruction. आपका घमंड, आपका एरोगेंस आपको सिर्फ बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। But if you live a life of forgiving each other and walking ahead, that's when you glorify God. जब आप एक माफ़ी का जीवन जीते हैं जहाँ आप एक दूसरे को माफ़ करते हैं, वो जीवन परमेश्वर को महिमा देता है। No one is perfect. Neither is a wife perfect, neither is a husband perfect. कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना पत्नी परफेक्ट है ना पति परफेक्ट है। But we are all, if we are intentional, we are still in the progress. We are towards the progressive side. पर अगर हम इंटेंशनल होके देखें तो हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ तरक्की कर रहे हैं। If you believe God is the one who brought you together, stick, because that's the covenant which is stronger than all of your experience and all what you go through. And a day will come when He will make it beautiful. अगर आपको ये विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है तो उसका वाचक में बंधे रहिए जो आपने परमेश्वर के सामने बांधी है, और परमेश्वर एक दिन आपके लिए रास्ता निकालेगा। Because He is the creator of marriage. क्योंकि परमेश्वर है जो इस शादी को बनाने वाला है। He is the maker of your house. वो आपके घर को बनाने वाला है। That doesn't mean you are not intentional about those things that is spoken about today. इसका मतलब ये नहीं कि आप उन बातों पे ध्यान नहीं देंगे जो हम आज बात की है। I believe that this will help you, and if there is restoration needed, may there be restoration. मेरा विश्वास है कि आज जो हमने बातें की है ये आपको सहायता करेंगी, और यदि कहीं पर रिस्टोरेशन की ज़रूरत है तो वो होगा।